थोड़ा वन बाय वन जैसे हमारे 2 यूनिट होते हैं, मैं प्रैक्टिकल्स को भी हैंड्स ऑन करके आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी शो करूंगा. So this is what just syllabus course. Now we'll start Fourier series. Basically, as we know, it is a signal. कोई भी सिग्नल्स में हम जब लर्न करते हैं, we extract some information. What is signal? Signal is a physical phenomena that carry or convey some information. इससे कुछ information निकालना. That is the duty of signal system. Now you should have one question. If we are performing so many operations is there, so how we can correlate signals with the Fourier series and all these functions? तो देखिए, सबसे पहले सिग्नल्स में 2 टाइप्स के मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं. तो फर्स्ट वी कंसीडर कंटिन्यूअस सिग्नल and the second we consider discrete signal. Continuous signal is also known as analog signal, and discrete signal is also known as digital signal. ये दुनिया के 2 बेसिक चीजें हैं. Physically we realize in the world, so whatever signal we have, it is in analog. That is another story when we convert analog signal into digital. It is our requirement, but जो ओरिजिनल सिग्नल जब भी आप जनरेट करते हो कोई भी सिस्टम से, दैट इज एनालॉग, मींस कंटिन्यूअस. इस एनालॉग सिग्नल्स में फिर से हम क्लासिफिकेशन करते हैं सिग्नल्स में. इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज Fourier series. Then you should have a question, what is the role of Fourier series? तो मैं अभी आपको बता देता हूँ. आपको याद हो तो देखिए, यूनिट नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखे. टाइप्स ऑफ सिग्नल में बेसिकली हमने 5 पॉइंट्स को लर्न किए थे. तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर भी यूनिट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम किसी की तरफ गुस्से से देख रहे, इट इज आल्सो द सिग्नल. तो क्या वो भी टाइप्स ऑफ सिग्नल है? इट इज अ टाइप्स ऑफ सिग्नल. बट इन टेक्निकली, इन सब्जेक्ट, इन इंजीनियरिंग, वी नेवर कंसीडर दैट टाइप ऑफ सिग्नल. बट मेजरली कंटिन्यूअस में टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हमने जो लिखे थे वो था सबसे पहले एनालॉग डिजिटल, इसके बाद इवन ऑड, सिमेट्रिक असिमेट्रिक, एनर्जी पावर, कॉजल नॉन कॉजल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक. नॉन पीरियोडिक ही और पीरियोडिक भी कहा जाता है. Now what is periodic signals? Yes, can you answer, Amanji? What is meant by periodic signals? Am I audible? Yes, sir. What is periodic signal? Continuous time signal is said to be periodic signal. Oh, continuous time. But what is the condition for periodicity? हम किस सिग्नल को पीरियोडिक कहते हैं? ट्राई कीजिए, गलत होगा तो चलेगा, कोई नो डाउट. आपकी एग्जाम थोड़ी चल रही है. Very good. Repeat sequence, sir. Yes, very good. Very good. Periodic signal are those signal which repeat after some interval of time. I'll repeat. Periodic signal is said to be when it repeat after some interval of time. कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद सिग्नल फिर से रिपीट होता है. सच अ सिग्नल वी कॉल्ड इट पीरियोडिक सिग्नल. फिर नॉन पीरियोडिक कौन से? Which does not repeat signals. Any example for periodic signal? The best example for periodic signal is sine wave. Sine wave हर 2 पाई के बाद सिग्नल रिपीट होता है. 0 to 2 pi, 2 to 4 pi, 4 to 6 pi, signal will get repeat. So 2 pi is the interval by which signal will repeat at the same position. So sine wave को हम periodic signal कहते हैं. फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल कौन से हैं? जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आप इसको रिकॉर्ड कीजिए. एक भी सेंटेंस रिपीट नहीं हो रहा है. So this is non-periodic signal. There is no repetitions in my words. So such a signal we consider as a non-periodic signal. So in this area, if
Now please concentrate. If I want to analyze periodic signals, मला जर periodic signals का analysis करायचा असेल, then if I want to analyze periodic signal, then I have strongest mathematical tool is Fourier series. आता उलट सांगतो, if I want to analyze periodic signal, I'll use for Fourier series. Ultimately, Fourier series is used to analyze periodic signals. Now, second question is, what about non-periodic signals? जे अपीरियोडिक किंवा नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है, इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? So the answer is, for non-periodic signal, Fourier series fails to analyze non-periodic signal. Means it is not applicable for non-periodic, it is only applicable for periodic signals. So what we can use for non-periodic signal? Then answer is unit number 3, Fourier transform. The answer is Fourier transform. But Fourier transform is not only applicable for non-periodic. ये periodic भी signal को analysis करता है और non-periodic को भी analysis करता है. Means the limitations of Fourier series. क्या है limitations? It is only applicable for periodic signals, not applicable for non-periodic signals. इसका ही limitations unit number 3 मिस्टर Fourier transform ही overcome करते हैं, जो Fourier transform is used to use analysis for both periodic as well as non-periodic. फिर आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि Fourier ट्रांसफॉर्म यदि पीरियोडिक को भी एनालिसिस करता है, then why to go for Fourier series? Don't go for Fourier series because Fourier transform has the potential to analyze both. But no, in some areas only Fourier series is best. Where it is, we'll discuss. ये हो गया आपका कंटिन्यूअस. So this is what periodic signal and non-periodic signals. On the basis we can classify Fourier series and Fourier transform in continuous functions. Then what about discrete signal? तो discrete में भी फिर से हम classify करते हैं two types. The first we called it discrete time Fourier series. इसमें भी Fourier series होती है लेकिन discrete. Discrete time Fourier transform जिसको DTFS कहा जाता है, और Fourier transform non-periodic के लिए discrete time Fourier transform. So again the same function we use in both Fourier series and Fourier transform. तो discrete time का जो भी एनालिसिस है हम 6 सेमेस्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. उस टाइम में आपको शायद मैं पढ़ाता हूँ तो आपको रेफरेंस भी दिया जाएगा कि हाँ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज व्हाट्स द जर्नी ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर क्वाइट फैमिलियर विद योर Fourier series. तो Fourier पे कॉन्सेंट्रेट करें. तो इसमें हम एक्चुअली क्या देखने वाले हैं इन Fourier series? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द Fourier series. We'll see some applications of Fourier series like a force oscillations, some approximations, calculations of Fourier series जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक से, क्वाड्रेंट है, एक्सपोनेंशियल. ये तो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे. So we'll concentrate on Fourier. तो I respect this person. इसका नाम है जोसेफ फोरियर. और जो भी अभी तक हमने Fourier के ब्ला ब्ला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टिल 8 सेमेस्टर. आप 8 सेमेस्टर, अब हर एक सेमेस्टर में मिस्टर फोरियर का नाम सुनेंगे. ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको Fourier नहीं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में सिग्नल्स है, कम्युनिकेशन है. विदाउट Fourier सीरीज एंड Fourier ट्रांसफॉर्म देयर इज द डिस्कशन ऑफ मिस्टर जोसेफ फोरियर. तो Fourier सीरीज एक 21 साल का लड़का था जिसने हीट ट्रांसफर मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कंडक्टर है, आप फर्स्ट पॉइंट पे उसको थोड़ा सा हीट कीजिए, सेकंड पॉइंट पे आपको उसका जो वार्मनेस है, गर्माहट है, आपको महसूस होगा. ये कैसे पॉसिबल है? एक पॉइंट पे आप हीट देते हो, सेकंड पॉइंट पे आपको, सेकंड एंड पे आपको थोड़ा सा गर्माहट महसूस होती है. इट इज नथिंग बट व्हाट हीट ट्रांसफर. ये आज कॉमन बात है, उस टाइम कॉमन बात नहीं थी. So he had proposed the paper in publications on heat transfer. And now heat transfer में क्या होता है, एक एंड से सेकेंड एंड से थर्ड, ऐसे जो एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कैरी करता है एनर्जी को, ये इनफाइनाइट सीरीज जनरेट करता है विद इन एलिमेंट.
अब ये वर्ड थोड़ा ध्यान से सुनिए, इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज। तो इस सीरीज को इंट्रोड्यूस करने वाला इंसान था मिस्टर जोसेफ फूरियर। एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में इस लड़के ने एक पेपर पब्लिश किया था और उस पेपर ने तहलका मचा दिया था उस टाइम जब मिस्टर लैपलास और मिस्टर लैग्रेंजियस, अब मिस्टर लैपलास मतलब वही लैपलास ट्रांसफॉर्म वाले अंकल, और मिस्टर लैग्रेंजियस मतलब वही लैग्रेंजियस सीरीज वाले। ये इंसान है, इनका नाम इनको बाद में दिया गया, लेकिन है तो इंसान ही। इनको थोड़ा सा, I'll not use the word jealousy, but इनको इनसिक्योरिटी फील हुई। क्या हमने उस टाइम लैपलास और लैग्रेंजियस, ये बहुत बड़े नाम थे, इनके सीरीज चलते थे, इनके एल्गोरिथम चलते थे। इसको चैलेंज किया था मिस्टर जोसेफ फूरियर ने कि विदाउट गोइंग फॉर ऑल द एलिमेंट्स यू कैन identify some of the elements and by which you can propose the infinite power series। ये इस लड़के का प्रपोजल पूरी तरह से कैसे रिजेक्ट किया जाए, दैट वाज प्लान्ड बाय मिस्टर लैप्लाशियंस एंड दिस लैग्रेंजियस। ये बीपी लाठी की किताब में एक पेज पे स्टोरी आप पढ़िए इसको ध्यान से, आपके पास बीपी लाठी हो। मैं भी कहीं मेरे मन से नहीं बता रहा, मैं भी बुक से रेफर करता हूँ। सो दिस वाज द स्टोरी। एक मैं बता, इसके बहुत सारे इश्यूज भी हुए हैं टेक्निकली नॉन टेक्निकली, लेकिन उसमें हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि इसको उस टाइम रिकॉग्नाइज किया गया रहता था जल्दी से, तो आज दुनिया 100 साल और आगे रहती थी। इस लड़के ने बहुत जल्दी सुसाइड करवा दी, इसीलिए। अदरवाइज फोरियर सीरीज का लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करने वाला लड़का ही फोरियर है, और फोरियर सीरीज का लिमिटेशंस को ओवरकम करने वाला भी यही लड़का है। कम उम्र में इसने बहुत सारे दुनिया को प्रपोजल दे दिए। और आपकी जानकारी के लिए, आप मुझे प्रॉपरली सुन रहे हैं तो प्लीज मार्क माय वर्ड, इस लड़के ने सिर्फ विदाउट, उस टाइम कुछ सॉफ्टवेयर नहीं थे, ना मोबाइल थे, ना एंड्रॉइड फोन था, ना अच्छे अच्छे कैड कैम, मैटलैब, साइलैब, लैबव्यू सॉफ्टवेयर नहीं थे। जिस दुनिया में ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, उस दुनिया में इसने पेन एंड पेपर पे सभी एक्सपेरिमेंट को रन करके प्रूफ करके बताया। सिर्फ उस टाइम सॉफ्टवेयर रहते थे तो इसका जल्दी प्रूफ होता था, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं होने की वजह से ये इनका प्रपोजल जल्दी से नहीं। मैं ये मेरे क्लास में हर बार बताता हूँ, ये देखिए 10 मिनट हम पूरे इंजीनियरिंग लर्न कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे जिस लड़के ने ये सब प्रपोजल, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। एखादे जब बायोग्राफी फिल्म देखते हैं, बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन टू द नेशन होता है, तो वैसे भी टू द इंडस्ट्री, टू द इंजीनियरिंग, मिस्टर जोसेफ फूरियर आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि ये लड़का और जिंदा रहता था, मैं आपको ये बताता हूँ, हम 100 साल और आगे रहते। ये 100 साल का स्टेटमेंट मेरा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द ऑथर्स, अननोन ऑथर्स, ये इनका है। तो बात है इनके मरने के बाद, जब बाकी साइंटिस्ट ने इनके दिए हुए स्टेटमेंट को स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इनके मरने के बाद 30 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट ने जब इसको प्रूफ किया कि जो इस लड़के ने बताया था वो सही है, उस 30 साल के बाद इस सीरीज को फोरियर सीरीज नाम दिया गया है, और उस ट्रांसफॉर्म को फोरियर ट्रांसफॉर्म नाम दिया गया। ये उनको एक लेजेंडरी रिमार्क्स है कि आज हम उस सीरीज को फोरियर सीरीज से नाम देते हैं। दिस वाज द पर्सन। ओके, आप इसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो इफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्सन। मैं तो करता हूँ, मुझे लगता है अच्छा रिगार्डिंग दिस पर्सन, बिकॉज इसकी वजह से आज हम मोबाइल फोन, टच स्क्रीन, जो कुछ भी चीजें है, लाइव मैचेस, हॉटस्टार, ओटीटी, नेटफ्लिक्स, जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं तो उसमें फोरियर का भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमें पता नहीं रहता, वी आर द नॉन टेक्निकल पीपल, दो वी आर बिलोंग्स टू टेक्निकल एजुकेशन। इफ यू डोंट नो, वी आर नॉन टेक्निकल। प्लीज follow such a person. If you don't know, try to catch the information. Okay, fine. Now we'll switch to the subject. This is what Mr. Joseph Fourier. इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेशन। Now we'll start our Fourier series. आपको पता है फोरियर सीरीज, क्योंकि आपका M1, M2, M3 में हो चुका है, लेकिन अभी फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कशन करने के पहले ये समझते हैं कि पहले इसके पहले क्या था।
आपने टेलर सीरीज नाम सुना है, M3 में ये टेलर सीरीज है जो हम इनफाइनाइट पावर सीरीज को डायरेक्टली जियोग्राफिकल फॉर्मूला से हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू अप्लाई दिस फॉर्मूला यू विल गेट एन आंसर। So as we know that Taylor series representation of function are valid only for those functions which are continuous and differentiable. But there are many discontinuities periodic functions, which requires to express in terms of infinite series containing sine and cosine terms. ये उस टाइम की बात है जब हम ये एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कौन सा? कि पीरियोडिक सिग्नल्स में भी कभी डिसकंटिन्यूटीज रहती है टू एक्सप्रेस इनफाइनाइट सीरीज। मतलब 2 सिग्नल, 5 सिग्नल, 20 सिग्नल, एक को आपके पास 15 सिग्नल है, 15 को एक मर्ज कर दीजिए, यू कैन डिफाइन इट, यू कैन एनालाइज। बट व्हाट अबाउट द इनफाइनाइट सीरीज इफ यू कंसीडर? तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा कुछ भी मैथमेटिकल एनालिसिस उस टाइम नहीं था। इसका क्या मीनिंग है, मैं एक शॉर्टकट में बताता हूँ। आपके पास स्क्वायर वेव है, आप स्क्वायर वेव देखते हो तो आपको दिखाई देती है वो स्क्वायर वेव, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताओ, सिंगल स्क्वायर वेव इज इक्विवेलेंट टू थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ट्रायंगुलर वेव, शॉर्टकट वेव, ये सब मिलकर वन स्क्वायर वेव बनती है। दिस इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियल सिग्नल। लेकिन ये हर एक इसमें अप्लाई नहीं होता है। ओके, कैसे हो सकता? नाउ व्हाट इज फोरियर सीरीज? Fourier series, which is an infinite series, it represents such a function in terms of sine and cosine. The best advantage of Fourier series, it can analyze for infinite series in terms of sine and cosine. Though the Fourier series are in certain sense more universal than Taylor series, as it applies to all continuous periodic functions and also to the functions which are discontinuities in their values. Discontinuities means what? There is no directly link with the first element to second element. There is some discontinuities. That was the limitation of Taylor series. So Fourier series is a very powerful method to solve ordinary and partial differential equation, particularly with periodic functions appearing as non-homogeneous terms. So this was the motivation to Mr. Joseph Fourier to go for Fourier series, and he proposed with the limitations of Taylor series. Okay, so this is what the continuity from Taylor series to Fourier series. What is Fourier series? Then Fourier series is what? Any periodic non-sinusoidal signal. Please understand the word. एक तो any periodic, the condition is what? Signal should be periodic. Any periodic non-sinusoidal means not necessary that signal should have sine and cosine. It may be a triangular, it may be a sawtooth, it may be a square wave, it may be any waveform other than non-sinusoidal. Sine, cosine छोड़कर कोई भी periodic signals. Please mark my word again. Any periodic non-sinusoidal signal can be expressed as linear weighted sum of harmonically related sinusoidal signal. Means कोई भी periodic other than sine cosine wave can be expressed in terms of sinusoidal signal. What is the definition of actual definition of Fourier series? Simply for periodic signal having non-sinusoidal 2, we can convert it into sinusoidal function. Means we can define, we can express the signal in terms of sine and cosine function. So non-sinusoidal के example क्या है? Triangular है, sawtooth है, square wave है, rectangular wave है, pulse wave है, blah blah blah. Other than sine and cosine, we'll get an answer in terms of sine and cosine. This is what the conversion of your non-sinusoidal signal to signals. But condition is what? Periodic. Signal it should be periodic signals. Now, what is meant by harmonically? If you know the fundamentals of physics in 12th, diploma वालों का मुझे नहीं पता है syllabus point of view, but in 12th physics 2, unit number 1, wave theory of light. In the wave theory of light, when we are talking about the coherency of light, the first term we introduced that time is a harmonics. Now, what is meant by harmonics? This is what another story. It requires another time. But this moment, to justify my answer, here it is.
Harmonically, if you want to define, then we define in terms of some coefficients A0, A1, A2, A3, A4. These are the harmonics defined for particular range of values. This is what a Fourier series. No Fourier waves, how it looks. So this is what is simply the waveform. So thousands and lakhs of images, waveforms are correlated to each other. इसमें sawtooth भी होती है, triangular भी होती है, sine भी होती है, non sinusoidal होती है, rectangular, all these waves. और इनका infinite series में analysis करना, that is the role of Fourier series. अब ये कैसे होता है? That way. Generally, Fourier series can be written as, इसका जो ideal formula है वो ऐसा है, f of x is equals to 1/2. अभी ये 1/2 जरूरी नहीं हर बार होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कभी 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. a0 प्लस समेशन n will vary from 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन bn sin nx. तो ये जो फॉर्मूला है ये आज भी यूज करते हैं. तो ये हो गया a0 मतलब फर्स्ट कोएफिशिएंट, और ये हो गया आपका an एंड bn सेकंड कोएफिशिएंट. तो इसमें से जो ये है an एंड bn, इसको कहा जाता है एसी कंपोनेंट, और जो a0 है मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, इसको कहा जाता है डीसी कंपोनेंट. ये दुनिया का आज भी एक ही फॉर्मूला है जिसमें एसी प्लस डीसी कंपोनेंट एक ही फॉर्मूला में अवेलेबल है. अभी हमारे क्लास में डिप्लोमा के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जस्ट काइंडली एक्नॉलेज डिप्लोमा ऑफ द नाइको कोनी. Yes, sir. Okay, so in diploma in 6th semester there is a advanced communication system नाम का एक सब्जेक्ट है जिसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF माइक्रोवेव कहा जाता है, जिसमें इनको 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन दिया जाता था और कैविटी रिप्लेस क्लिस्ट्रॉन दिया जाता था. तो 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन एंड रिप्लेस क्लिस्ट्रॉन में एनालॉग में ऐसी कंडीशन थी कि जहाँ पे ACB सिग्नल था और DCB सिग्नल था. AC मींस अल्टरनेटिंग सिग्नल्स एंड DC इज कांस्टेंट. जब कंडीशन ऐसी बनती है कि जहाँ पे ACB है और DCB है, उस सिग्नल को जब एनालिसिस करना है तो आज भी हम फोरियर सीरीज को यूज करते हैं. जैसे इन्होंने बेसिक फंक्शन यूज किया. डिप्लोमा वालों को शायद ये कंडीशन पता है. होप सो. नाउ इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ. जब हम बात करते हैं ना किसी से, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड से जब जॉ से आवाज निकलती, जो अभी बात कर रहे हैं, तो हमारे जो लंग्स है ना, जो इसको हिंदी में फेफड़े कहा जाता है, ये पंप करते रहते हैं. जब ये पंपिंग करते हैं तो इट जनरेट्स साइन वेव. हाँ, लेकिन बट विद अ कांस्टेंट फंक्शन. हमारा इंसान का एक्चुअल जो साउंड है वो कैसे, मैं आपको सुनाता हूँ. हमारा एक्चुअल साउंड है, यहाँ पे हम फोरियर सीरीज यूज कर रहे हैं. ये बॉडी का फोरियर सीरीज है जिसमें AC प्लस DC. DC मीन्स लंग्स जो आवाज जनरेट करता है, वो आवाज ऐसा है. आप जॉ को हिलाइए मत, और जो आवाज जनरेट होता है वो लंग्स में से डायरेक्टली आया वोकल कॉर्ड्स के थ्रू वाला आवाज है. दिस इज ऑल माय DC सिग्नल. But when I provide some particular shape to this by using jaw, then sound creates. हमारे जो jaw की जरूरतों की वजह से हम जो शेप प्रोवाइड करते हैं, and accordingly अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, hello, so this word hello, hi, so these are the words just only because I process some work on that DC signal by using my jaws providing AC signal. So this is what one of the best biomedical applications of Fourier series. Lungs फेफड़ करते हैं, उससे जो आवाज निकलता है वो DC. This is what one of the best applications of your Fourier series. Okay, fine. So ये this is what in Fourier series. So Fourier series is particularly what? ये फॉर्मूला है, इसको हम बाद में भी लर्न करेंगे. A0 प्लस an प्लस bn. an के साथ हमेशा कॉस फंक्शन होता है, bn के साथ हमेशा साइन फंक्शन होता है. यहाँ पे आपको आउटपुट पर चल रहा है, बिकॉज इन फोरियर सीरीज वी डिफाइन आउटपुट एज अ कोसाइन फंक्शन एंड साइन फंक्शन with respect to the coefficient. Now A0, an and bn are the coefficients for this particular value. Where
What is A0, what is AN and what is BN? Here it is the formula. and ये formula हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस फॉर्मूला विल वर्क. बट दिस मोमेंट इतना समझ लीजिए, A0 मतलब DC कंपोनेंट, AN एंड BN मतलब AC कंपोनेंट. दिस इज व्हाट द सिंपल फॉर्मूला. सो Fourier series. So Fourier series make use of orthogonality, relationship of sine and cosine function. So there is a relation in between Fourier series with sine and cosine function. Now, basic formula for Fourier series. Fourier series of a periodic function like f of x with a period 2 pi is defined as trigonometric. Now trigonometric means what? Non-sinusoidal series. हमेशा ध्यान में रखिए, फोरियर सीरीज में इनपुट आपका नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक नॉन साइनसॉइडल रहेगा, साइन वेव कभी नहीं रहेगा. प्लीज मार्क माय वर्ड, फोरियर सीरीज में इनपुट ऑलवेज विल बी अ नॉन साइनसॉइडल सिग्नल. ओके, सो फोरियर सीरीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन f of x with a period 2 pi is defined as trigonometric series with coefficients of a0, an and bn is known as Fourier coefficients. जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, the A0, AN and BN are called as Fourier coefficients. And individual term in Fourier series are known as harmonics. Individual term means क्या? Like AN, BN हमें पता है, लेकिन A1, A2 first, A1, B1 first harmonics, A2, B2 second harmonics, A3, B3 third harmonics, A4, B4 fourth harmonics. उसी तरह nth harmonics means what? AN, BN will be the fourth nth harmonics. And every function, ये सबसे important, every function f of x of a period 2 pi satisfying the condition Dirichlet can be expressed in terms of Fourier series. मला माहिती आहे समजलं नाही तुम्हाला, शेवटचं मी सांगतो परत कसं. मी काय म्हटलंय, फोरियर सिरीज जोसेफ फोरियर ने सांगितलेलं आहे. दिस इज व्हाट अ पीरियोडिक सिग्नल यू कैन अप्लाई, यू विल गेट अ रिजल्ट. यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट क्या है ना, जोसेफ फोरियर ने ये अपना प्रपोजल दे दिया है, उनके बाद उनका देहांत हो चुका है. देहांत होने के बाद मिस्टर डिरिचलेट नाम का एक इंसान था, इसने उस फोरियर सीरीज पे लर्न किया. तब उसको कुछ बातें महसूस हुई जो अभी आपसे मैं बता रहा हूँ. मिस्टर डिरिचलेट को क्या लगा, उसने पूरा स्टडी करने में उसको एक बात पता चली कि फोरियर सीरीज में दी हुई बातें सभी बराबर है, लेकिन एक कंडीशन है कि फोरियर सीरीज हर एक पीरियोडिक सिग्नल्स को एनालिसिस नहीं कर सकता. आई रिपीट माय वर्ड, शांतता नहीं कर. फोरियर सीरीज हर एक पीरियोडिक सिग्नल्स को एनालिसिस नहीं कर पाएगा. ये बात कंफर्म है कि फोरियर सीरीज इज एप्लीकेबल फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स. बट मिस्टर डिरिचलेट का कहना है कि एवरी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. फिर सब लोगों ने उनको पूछा, फिर आप बताइए क्या करोगे. तो डिरिचलेट ने 3 पॉइंट बताए. उनका कहना यह है कि यदि ये 3 पॉइंट, ये 3 कंडीशन कोई भी पीरियोडिक सिग्नल सेटिस्फाई करता है तो, आई रिपीट माय वर्ड, मिस्टर डिरिचलेट अंकल ने ये कहा कि यदि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल्स ये मैंने दी हुई 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सिग्नल आसानी से फोरियर सीरीज के जरिए एनालिसिस किया जा सकता है. आज उसी 3 कंडीशंस को मिस्टर डिरिचलेट कंडीशन से माना जाता है या पहचाना जाता है. आपकी जानकारी के लिए वो 3 कंडीशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आज भी पूछी जाती है. तो जो इस डिरिचलेट अंकल ने बताई हुई कंडीशन कौन सी है, उनका क्या कंडीशन है, और उन्होंने फोरियर को चैलेंज किया. तो फोरियर को चैलेंज करने के बाद, क्योंकि उस टाइम फोरियर नहीं थे, तो फोरियर को चैलेंज करने के बाद दुनिया ने भी ये एडमिट किया, यस, जो डिरिचलेट ने बताया है यदि वो फोरियर सीरीज में हम अप्लाई करते हैं तो सिग्नल 100% एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज. और उस दिन से, जिस दिन से जो 3 कंडीशन डिरिचलेट ने बताया है, उसके बाद सभी ने स्टडी किया और आज भी वही कंडीशन आज भी हम अप्लाई करते हैं. फिर आपको क्वेश्चन होना चाहिए वो कौन सी कंडीशन से.
तो क्या कंडीशंस है, ये सभी कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके 10 मार्क्स का वेटेज। मैं आपको भी उसको थोड़ा सा ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा हाउ Dirichlet's condition works for betterment of Fourier series. So I think it takes again one lecture for to explain the Dirichlet's condition. So now we'll do one thing. We'll stop here, and next lecture we'll start with the discussion of Mr. Dirichlet's condition and the Fourier series execution and the types of Fourier series. But if you have any question until the now of unit number 2, you can ask that. कोई प्रश्न असतील, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करना है तो भी बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। Is there any questions? Okay, hope so. You don't have any question. So next lecture will start with the discussion with Dirichlet's conditions. Okay, we'll stop here. Thank you.